Hello everyone, welcome to this lecture. We were discussing numericals on capital budgeting. Okay, so last lecture we discussed about the non-discounted rate method in which we have calculated the payback period. So now we are going to discuss what is called as time adjusted capital budgeting numerical. Okay, so as I have discussed in the class, when we are calculating टाइम, जब भी हम टाइम एडजस्टेड की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हर साल में किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करो कि एक साल में एक कुछ कैश इनफ्लोज मेरा आया है, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू जीरो टाइम है ना, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट रेज टू द पावर ऑफ n, वेयर n स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड. Okay, and R is the rate, discounted rate, which is given in the question. Okay, so we for the first year we will calculate like this, and then we'll calculate the present value for the second year, then for the third year, so on and so forth. We'll calculate all the present values, then we will add these present values and we'll subtract with the initial investment. So that will give me the net present value. So if the net present value is positive, then I say that I have to accept the project, or otherwise I have to reject the project. So in that we have seen the factor 1 by r 1 plus r raised to n. That factor is called as PV factor. Okay, where r is the rate of return and n is the number of periods. So now suppose if you want to calculate on the basis of PV annuity factor, so here this is the present value of the annuity calculator, P into 1 plus r raised to minus n divided by r. Okay, where P refers to the periodic payment, R refers to the rate per period, and n refers to the number of periods. So let us take one question. So suppose the initial cash outlay of a project is rupees 40,000 and it generates cash inflows of rupees 20,000, 15,000, 25,000, rupees 10,000 in 4 years. Using the net present value method, appraise the profitability of proposed investment assuming that 10% rate of discount. The present value of rupees 1 at 10% discount for the 4 years is 0.909, 0.9, 0.826, 0.751 and 0.683. So very simple question, everything is given in the question. First of all, what is given? We have been given the initial cash outlay, that is rupees 40,000. ठीक है, so it generates over the years, वो generate करता है तरह तरह के कैश इनफ्लोज. पहले साल में वो 20,000 रुपये का कैश इनफ्लो कर रहा है, दूसरे साल में 15,000 का कर रहा है, तीसरे में 25,000 का कर रहा है, चौथे में 10,000 का कर रहा है. ठीक है, तो अब हमें इस प्रेजेंट वैल्यू को यूज़ करके ये बताना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ है मेरे इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, और यहाँ पे मेरा रेट ऑफ परसेंट मुझे दिया है 10%. तो इसको इन्होंने कैलकुलेट भी करके रखा है ऑलरेडी, 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683. बस अभी हम इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, उसके बाद उसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. इतना था हमें करना है इसमें. तो ईयर 1 के लिए जैसा कि मैंने कैश इनफ्लो दिया था 20,000 रुपीज़, पी फैक्टर है 10% दिया है 0.99. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, आई विल मल्टीप्लाई पी फैक्टर विद द given value, given cash inflow 20,000 rupees. Now for the second year the cash inflow is 15,000 rupees. Multiply this by 0.826, you will get 12,390. Okay. Similarly for the third year, multiply these two, you will get this one 18,775, and multiply these two, you will get this one. Okay, then do all the totaling. Okay, total the present value what have you have कैलकुलेटेड, जो भी आपने कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू की है उन सबको आप जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा 56,175. ये मेरी जो होगी वो मेरी क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 40,000 रुपीज़. तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरी क्या है 56,175 माइनस 40,000, जो कि मुझे देगा 16,175. ओके, तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट वायबल है. ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है. ठीक है, इसमें आउटफ्लो दिया हुआ है, आपको इनफ्लो दिया हुआ है.
ठीक है। आउटफ्लो 0th ईयर में 1,50,000 का है, फर्स्ट ईयर में 30,000 का है, उसके बाद में नहीं लगे। आउटफ्लो का मतलब ये आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हुआ है, तो ये नेगेटिव में यूजुअली दिया जाएगा, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपका आउटफ्लो में गिना जाएगा। और इनफ्लो में हर साल में आपके पास में पहले साल में 30,000 रुपीज़ आते हैं, दूसरे साल में 40,000 रुपीज़ आ रहे हैं, है ना, और तीसरे साल में 50,000 आ रहे हैं, चौथे में 60,000 आ रहे हैं, पाँचवें में 70,000 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूजिंग दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग 10%। अगेन यहाँ पे मुझे 10% डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% फॉर 4 years इज गिवन 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.63। अगेन क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई हैं, जस्ट हमको एक टेबल बनाना है, उसके बाद उसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैश इनफ्लोज की। तो 0th ईयर में क्या है, 1,50,000 एंड 30,000। ओके, सो इनका पीवी फैक्टर है 10% हमने निकाल लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, वो कैश आउटफ्लोज था, उसमें गलती से कैश इनफ्लोज लिख दिया गया, कैश आउटफ्लोज था। अब कैश इनफ्लोज की बात करते, हर साल सपोज पहले में 30,000 आ गया, अब इसमें 0.99 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 27,270। 40,000 के लिए 0.826 है, तो इसके लिए मिल जाएगा 33,040। 50,000 के लिए 0.751 है, तो ये मुझे मिल जाएगा 37,550। 60,000 के लिए 0.683, तो ये मुझे मिल जाएगा 40,980। 70,000 के लिए 0.621 है, यहाँ पे मिल जाएगा 43,470। 40,000 के लिए 0.621 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 24,840। अब इन सबको हमें ऐड कर दूँगा तो मेरे पास में टोटल आएगा 2,07,150। ये जो है वो मेरी क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दूँगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेरा क्या होगा, आउटफ्लो का जितना भी सम है ना, वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट 2,07,150 minus 1,77,270, that is rupees 29,880. That is again positive, so the project is viable. Okay. So profitability index usually हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, it is calculating by dividing the present value of the project by the future cash flow of the initial investment. ठीक है, the PI ratio is calculated as follows: PV of the future cash flows divided by initial investment. ओके, तो जैसा कि हमने थियरी क्लासेस में पढ़ा था कि पीआई अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है तो दैट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी इज पॉजिटिव। इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इंडिकेट्स द प्रोजेक्ट विल लूज मनी। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, ऋषिका लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद इनिशियल कैश आउटले ऑफ ₹50,000। ओके, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, ₹50,000। इट्स कैश इनफ्लोज आर एज फॉलोज। पहले साल में हमें 20,000 मिल रहे हैं, दूसरे में 15 मिल रहे हैं, तीसरे में 15 मिल रहे हैं, चौथे में 10,000 मिल रहे हैं और पाँचवें में 10,000 मिल रहे हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज, रेट मेरे को दिया 10% पर एनम। कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक ऑफ द पीरियड। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10% दिया हुआ है मुझे, तो हर एक का मैं रेशियो निकाल लूँगा पीवी फैक्टर का 1/1 + r⁴ से। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता रहूँगा, 20,000 × 0.09, 15,000 × 0.86, 15,000 × 0.751, 10,000 × 0.683, 10,000 × 0.621। फिर मेरे को ये प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। इन प्रेजेंट वैल्यू को मुझे ऐड कर देना, तो मेरे को कितना आंसर मिल जाएगा, 54,875। ठीक है, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का हमें फॉर्मूला पता है, 4 years। ठीक है, 4 years प्लस 50,000 माइनस 48,665 डिवाइडेड बाय 6,210 और 4 + 0.251 years, दैट विल गिव मी 4.215 ईयर। ये मेरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा। थैंक यू वेरी